Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this Nation Now edition, we talk about news from Mumbai, Maharashtra, and India. Basically, we got news of Rahul Gandhi in the Parliament. Talks about all Indians coming together to fight for democracy. He says democracy is under threat. To the Romans, justice was a goddess whose throne tempests could not shake, whose spells passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. That was how he described justice. But जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने यूके पार्लियामेंट में जिस प्रकार से कहा कि every Indian should rise to protect democracy. And at the same time, we have a complete diversion where Sharad Pawar ji here in Maharashtra, he says, we support the Nagaland government. He says, we support the Nagaland government, we support the CM, but not a BJP. A great contrast of what it happens in. We are joined, our guests today are Mr. Avadhut Wagh from the BJP, we got Dr. Sanjay Papekar Saab from the Aam Aadmi Party, and Bharat Singh ji from the Congress. We'll come to you, sir. Avadhut Wagh Saab, all welcome to the show. Avadhut Wagh Saab, today we are without Bajaj Saab. He is slightly not well, not disposed. Wagh Saab, Rahul Gandhi जिस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि all Indians should unite and fight for Indian democracy from wherever you are. कहाँ जहाँ पर देश विदेश जहाँ भी आप हो, आपको सबको एकत्रित होके इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा. एंड सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रास्ट वो शरद पवार साहब जिस प्रकार से कहा कि नागालैंड के सीएम को हम समर्थन देते हैं, बट वी आर नॉट सपोर्टिंग द बीजेपी हियर. हाउ डू यू सर बोथ द इश्यूज? अवधूत वाघ साहब, हाउ डू यू गो? बिकॉज वी लव टू सी यू टॉक. Basically, in both the statements and the action, I am not surprised. Neither I am surprised nor the action. जब तक राहुल जी का सवाल है, यह दुख की बात है कि भारत के सरकार के खिलाफ एक हो जाइए, यह कॉल देने के लिए उन्हें इंडिया का नहीं लेकिन इंडिया के बाहर का एक प्लेटफॉर्म चुना पड़ा. Few months back, when Mr. Rahul Gandhi has started his भारत जोड़ो यात्रा, he said that मैं प्यार बटाने के लिए आया हूँ, लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ. लेकिन जैसे वो भारत के बाहर जाते हैं, तब वो कहते हैं कि सरकार तोड़ने के लिए सबने साथ आना चाहिए. Both the things are contradictory. Basically, here, Nambiarji, I want to just recall the late Honorable Prime Minister Indira ji. 1977 में चुनाव हारने के बाद अहमदाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जो निर्णय दिया, उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा. जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी एंड इंदिरा जी वाज पुट इनटू जेल. उसके बाद में 1980 में जब वापिस इंदिरा जी सत्ता पर आ गई, आपको मालूम है जनता पार्टी was divided into many parts and many fragments and segments. She went to London, and at the same conference she had a press conference where one of the journalists asked about her experience in jail. The journalist and the British media, they thought that Indira ji will talk something bad about the jail, bad about the administration. But why we are all proud about Indira ji, barring her action of death emergency. We are very well proud about Indira ji because she refused to talk anything about Indian jail, the problems in India, outside India. उन्होंने हमेशा भारत में रह के भारत के बारे में जो उनकी जो राय थी वो बताई थी. But when we go out of India, we all should unitedly work and we should not defame our own country. आपको और एक पता बताता हूँ कि जब नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, तब यूनो में अपना बात रखने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनो में भेजा था. जब यूनो में हम जाते हैं, भले हम अपोजिशन में हैं, हम हमारे देश के हित की और देश के अच्छेपन की बात करते हैं. जो हमारे में प्रॉब्लम्स है, जो हमारे में शायद दूरियां होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, हमारे
देश के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, बाहर नहीं। ऐसे कहते हैं कि 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, लेकिन जब किसी ने कौरवों के ऊपर हमला किया तब 5 पांडव जाकर वो कौरवों को सहारा दिया। बिकॉज हम पंचती शतम, हम 105 है। जब बाहर के लोग आते हैं हम 105 है, आपस में हम 100 और 5 होते हैं। यह नीति कांग्रेस के नेता अपनाते नहीं और बार बार भारत के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बोलना, चाइना को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, मुझे लगता है वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। शायद इसी की वजह से जो देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी लोग हैं वो कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस धीमे धीमे धीरे धीरे असंगत हो रही है। शरद पवार जी की जो बात है, तो शरद पवार जी हमेशा चकमा देने में फेमस है। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मैंने चाय तो पिया नहीं, मैंने तो खाली ग्लास मुंह को लगाया है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सब है। मुझे लगता है शरद पवार जी ने ये बचपना छोड़ना चाहिए। उनके जो 7 एमएलए जीत के आए हैं नागालैंड में, वो उनकी बात सुनते नहीं। उनको किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल चाहिए था, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लिया, just to have a symbol. Otherwise, they have nothing to do with NCP. All these 7 MLAs are not under the control of NCP. That is why they have decided to support the real nationalist front, which is BJP and the Nagaland People's Party. Thank you, sir. I will get back to you. I will allow Avdut Wagh sahab, I will allow the Congress spokesperson Bharat Singh ji to respond to that. और उसके बाद बाबर कृष्ण साहब, I'll come to you. Doctor साहब, I'll come back to you. First, भरत सिंह जी, जैसे साहब ने कहा कि देश के अंदर आपके जो भी मसले हैं आप उठा सकते हो, मगर देश के बाहर ये परंपरा नहीं रहा है। बोले इंदिरा जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन वाघ साहब बोले इंदिरा जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट इंदिरा जी ने कभी देश के बाहर देश का समस्या लेकर गए नहीं, और देश को, लोगों को जिस प्रकार से क्रिटिसाइज करना है या लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करना, तो आप कैसे देखते हो भरत सिंह जी, क्या ये सही है जो राहुल गांधी जी ने किया है? देखिए, पहले तो मैं अवधूत जी को बहुत बधाई देता हूं और बहुत दिलेरी से पहली बार कोई भाजपा का प्रवक्ता जो है वो इंदिरा जी का तारीफ किया है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही में तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम लेना इनके प्रवक्ताओं को भारी पड़ता है, उसे जो है सस्पेंड कर दिया जाता है या तो निकाल दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवधूत वाघ जी, जो आपने जो है इंदिरा जी को पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी प्रवक्ता ने इस तरह से टीवी पे कहा है। और एक समय था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उनको दुर्गा का स्वरूप उन्होंने सदन में कहा था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। अब आता हूँ मुद्दे पे। देखिए, आपने कहा कि राहुल जी विदेश में जाके, यूके में जाके अगर इस तरह से बयान देते हैं तो क्या यह उचित है? नाम्बियार जी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर संघाई में जाके ये कहते हैं कि मुझे कभी कभी शर्म आता है कि मैं भारत देश में जन्मा हूं, क्या यह दिखाता है, क्या यह बताता है कि आप बाहर के जमीन पे, विदेश की जमीन पे जाके अगर इस तरह से वक्तव्य देते हैं कि मुझे कभी कभी ये सोचता हूं, कभी कभी शर्म आती है, तो क्या यह देश के प्रधानमंत्री को उचित लगता है कहना? और क्या ये इससे हमारे देश का जो है शान बढ़ रहा था? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह उचित लगता है कि वो जाए और डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करें और अब की बार मोदी सरकार से, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, बेचारे उनके ऊपर हाथ रखे, वो भी हार गए, डोनाल्ड ट्रंप भी हार गए। उनको क्या पता था कि मेरा प्रचार करने आए और मुझे हरा के भेजेंगे? क्या ये देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि विदेश की धरती पे जाके कहें कि विकास तो पूरी तरह से ठप हो चुका था, 70 सालों में पिछले विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, जब से मैं आया हूं तब से विकास अब शुरू हुआ है? क्या ये विदेश की धरती पे जाके कहना ये किसी प्रधानमंत्री को उचित शोभा देता है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बारे में तो अवधूत जी ने कह ही दिया कि, और उसके बाद नेहरू जी ने कब कहा था या नरसिम्हा राव जी ने कब कहा था, चंद्रशेखर जी ने कुछ ऐसा कहा था क्या?
तो ये सारे जितने प्रधानमंत्री थे कभी जाके विदेशों में हमारे देश का, अपने देश का स्वतः अपमान तो कभी नहीं किया था। ये पहला देश के प्रधानमंत्री मैंने देखा कि जो विदेशों में जाके और विदेशों की धरती से ये कहते हैं कि मुझे तो शर्म आती है कभी कभी कि मैं जो है भारत देश में पैदा हुआ हूँ। इस पे जवाब जरूर मैं सुनूंगा अवधूत जी का। क्या और लोकतंत्र रही खतरे बात में है? राहुल, भरत सिंह जी, लोकतंत्र क्या खतरे में है? एक ही हाँ, मैं मिनट। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं लोकतंत्र खतरे में है, वो खतरा दिख रहा है आपको। वो दिल्ली से लेके गली तक वो खतरा दिख रहा है। दिल्ली की हालत क्या हो रही है वो आप देख रहे हैं, मुंबई की हालत क्या है वो देख रहे हैं। सिर्फ विपक्ष के 98% विपक्ष के लोगों पे ईडी सीबीआई का छापा, और मुझे लगता है 2% भी मुश्किल से सत्ताधारी जो अभी आज भाजपा सरकार चला रही है उनके लोगों पे छापा। सबसे बड़ा ताजा उदाहरण आप देखिए ना यार जी, कि कर्नाटक में 6 करोड़ जो है वो एमएलए के घर से बरामद होता है। 40 लाख रुपया घूस लेते हुए लड़का पकड़ा जाता है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। एंट्री बेल के लिए वो जाते हैं और उसके बाद में भी क्या है भाई, ईडी कहाँ है, ईडी क्या कर रही है? इतनी तत्परता जो है वो कर्नाटक में क्यों नहीं दिखा रही, सीबीआई क्यों नहीं दिखा रही? सिर्फ वो दिल्ली में जो है तत्परता दिखाएगी, वो जो है मुंबई में संजय राउत के लिए दिखाएगी, नवाब मलिक के लिए दिखाएगी, अब उसके बाद देशमुख जी के लिए दिखाएगी। तो ये सारा चीज देखने के बाद ये समझ में आता है कि इस समय संविधान खतरे में है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण दे दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 जब बड़े जज आके रोड पे ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शंका जागती है, शंका होती है कि हाँ, अगर जब हम जहां गुहार लगाते हैं अपने निर्दोष होने का, जब वही जज आके ये रोड पे कहे कि इस देश में सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है, जब एजेंसियां अपना दुरुपयोग करने लगे और जब केंद्र की सरकार अपने चरम को एकदम तांडव मचा दे, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए पूरे देशवासियों से विदेशों में भी, भाई हिंदुस्तान के लोग विदेशों में भी बैठे हैं ना, जहां देश के प्रधानमंत्री जाके ताली बजवाते हैं, जाके थाली बजवाते हैं, वहां पे भी तो हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं ना। उनसे हम अपने दिल की बात नहीं करेंगे क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है? उसी हिंदुस्तान के लोगों से जाके राहुल जी मिले और उनसे बात किया कि भाई देश के संविधान खतरे में है। खतरे में क्यों है, मैंने सब विश्लेषण कर दिया। भरत सिंह जी, जिस प्रकार से शरद पवार जी यहाँ पर एमवीए का ऐलान करते हैं कि एमवीए साथ में लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर नागालैंड, देश के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर नागालैंड में सपोर्ट करता है सरकार को और कहते हैं कि हम सीएम को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इसमें आपको कुछ खतरा लग रहा है एमवीए अलायंस में, भरत सिंह जी? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो कि मैं कोई एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर उन्होंने नागालैंड में समर्थन दिया है तो आप समझिए नागालैंड में सरकार किसकी है, वहाँ पे भाजपा के कितने विधायक हैं और वहाँ पे दूसरी जो जिसने सरकार बनाई उनके कितने विधायक हैं। अब ये समर्थन देना नहीं देना ये तो शरद पवार ही बता सकते हैं कि क्यों समर्थन दिया है, क्यों नहीं दिया। हाँ, इतना आपको जरूर बताता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे मजबूती से एक साथ है, एकजुट है, इसमें कोई जो है दरार नहीं पड़ी है और न पड़ेगी आगे। डॉक्टर बापेकर साहब, you heard, now the issue यही है कि राहुल गांधी स्पीकिंग इन द यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोकतंत्र खतरे में है और पूरे देश विदेश से सबको, एक जो भी हिंदुस्तानी है, इंडियन है, सबको एक साथ आके संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। डॉक्टर बापेकर जी, हाउ डू यू सी दैट? क्या लोकतंत्र खतरे में है एज राहुल गांधी सेज? बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो देश में घट रहा है दिन ब दिन, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अगर दुनिया में जाके लोकतंत्र खतरे में है ये बताया, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया को मालूम है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार भाजपा गवर्नमेंट ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, विरोधियों का गला दबाने का काम कर रही है, वो पूरे दुनिया देख रही है। अभी अवधूत जी जो भाजपा के प्रवक्ता, इन्होंने बताया कि जब इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, वो तब हालत अलग थे और अब हालत अलग है। अब आपने देखा होगा कि जो बेकसूर लोग हैं, खाली विपक्ष है करके उनको जेल में डाला जाता है। हमारे मनीष सिसोदिया का क्या गुनाह है? उनको जेल में डाला है।
उनको न्यायालय ने विपासना सेल में रखने का आदेश दिया था, उसके बावजूद 1 नंबर सेल में खूंखार कैदियों के बीच में रखा है। उनका गुनाह क्या है? तो ऐसी मनमानी करती गवर्नमेंट, और पूरी दुनिया देख रही है। लोकतंत्र बचाने का समय आया है और सब लोग एक साथ जोड़ के ये लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है। ये बात सही है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही है। अवधूत वाघ साहब, द वे द आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन एंड द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन दोनों एक मत का है, मतलब कि लोकतंत्र खतरे में है। जैसे आम आदमी पार्टी का स्पोक्सपर्सन, उनका डॉक्टर साहब का कहना है कि देखो किस प्रकार से मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस प्रकार से द एनफोर्समेंट एजेंसीज आर बिहेविंग, कौन से जेल में रखा है, किस प्रकार देयर अ थ्रेट टू हिज लाइफ जहां उस जेल में रखा है, जिस प्रकार से प्रेशराइज कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स को एक के बाद एक, जैसे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को एनसीपी में हमने देखा। यस अवधूत साहब बोलिए ना। वाघ साहब, देखो, मनीष सिसोदिया को क्यों अटक किया, जेल कस्टडी में क्यों रखा, उनको पुलिस कस्टडी दी गई है न्यायालय ने, वो क्यों दी, ये सभी लोग जानते हैं। ये जो पूरा मामला है वो ओपन एंड शट केस है, और आने वाले कल में आपको सभी चीजें धीरे धीरे मालूम होगी उसके बारे में, बिकॉज इट इज अंडर ट्रायल। इट इज नॉट वेरी गुड ऑन माई पार्ट टू accuse anybody, to talk about something which I really don't know. बात जब राहुल गांधी की आती है तो राहुल जी आज एक नेता है कांग्रेस के, बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो बात करते समय, सरकार की आलोचना करते समय हमारे देश के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं मैं कहता हूँ। बीच में भरत सिंह साहब ने बताया कि बीजिंग में जाके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बात की। भरत जी, मेरा आपको ओपन चैलेंज है, आप मुझे लिंक दे दीजिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा यदि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कहा होगा कि मैं भारत में पैदा हुआ, यह मेरे लिए शर्म की बात है, यदि ये मोदी जी का कहना है तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में निकल जाऊंगा। मैं आपको 7 दिन की मुद्दत देता हूँ नंबियार जी के सामने, यदि आपने यह सिद्ध नहीं किया सिंह साहब तो आप पॉलिटिक्स, एक मिनट मेरे को बात करने दो। आप बात करते समय मैं नहीं बात कर रहा था, आप रिप्लाई भाई आप भी तो रिप्लाई कीजिए ना सर। भरत सिंह जी जरा उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, बात कर, बोलिए। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं 7 दिन देता हूँ, यदि आप कोई भी ऑथेंटिकेटेड लिंक देंगे कि जहां मोदी जी ने कहा है मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लूंगा, और यदि आप नहीं कर सकते हो प्रूफ, तो 7 दिन में यही चैनल में आके मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं, आप सॉरी बोलो, आप सिर्फ सॉरी, बाकी कुछ नहीं। देखो कितना 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 मैं वास्तव। तो बात ऐसी है, कुछ भी झूठा बोलना। राहुल गांधी जी वहां जाते हैं और बोलते हैं हमारी माइक बंद करते हैं, हमारी माइक बंद करते। आज स्टेटमेंट दिया है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ने, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कभी भी किसी के माइक बंद नहीं किए। अच्छा, यदि माइक बंद किया है तो दूसरे दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल जी ने भारत में क्यों नहीं बताया? ऐसा कौन सा मुहूर्त उन्होंने देखा कि जो वहां जाके बात करे? आई विल टेल यू द रीजन। यदि वो भारत में बोलते थे तो उनके ऊपर संसद का अपमान किया, ऐसा ही लगता था। अभी उन्होंने जाकर बोला है लंदन में, इसके वो छूट गए हैं। तो भारत के बारे में, संसद के बारे में, जिस संसद का वो बहुत साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी माताजी प्रतिनिधित्व कर रही है, उनके पिताजी ने किया, उनके नानी ने किया, उनके नानी के पिताजी ने किया, ऐसे संसद का हम अपमान करना, झूठ बोलकर अपमान करना, ये उनको शोभा नहीं देता। अभी तो ना तरुण है ना बाल है, वो अभी 52, 53, 54 उम्र के प्रौढ़ है। भले उनकी शादी ना होने दो, भले उनका बात करने का रवैया 12-14 साल के लड़के जैसा होने दो, लेकिन उम्र से तो प्रौढ़ है। हम इतनी आशा करते हैं कि एक मैच्योर्ड प्रौढ़ पॉलिटिशियन जैसा उन्होंने बात करे, झूठे इल्जाम नहीं लगाए, जो सच है वो लोगों के पास आना चाहिए।
झूठ का सहारा लेके उनकी बिल्डिंग बड़ी नहीं हो सकती। Yeah, okay, Bharat Singh ji, बोलिए. You got the chance to talk what अवधूत allegation जी, जो. मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपको भी मैं जो है नाम्बियार जी के इस चैनल पे आपको आश्वस्त करता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि राहुल जी का जो उन्होंने एलिगेशन लगा, यूके में एलिगेशन लगाया कि स्पीकर बंद किया जाता है, उन्होंने कम से कम 4 नहीं 10 बार इसी देश में और मीडिया के सामने कहा कि हमारी बातों को जब हम बोलते हैं तो स्पीकर बंद कर दिया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। उसका सबसे बड़ा, अरे आप देखिए, आप लोग का कैसा है पता है? आप लोग का अवधूत जी, जोर से बोलो, तेज से बोलो, दबा के बोलो, झूठ बोलो। आप लोग सिर्फ 8 साल में झूठ 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 और झूठ, सिर्फ झूठ ही बोले हैं। सच तो आपके पाले आता ही नहीं है और आप सच के पास जाते नहीं है। तो आप पहले सुनिए उसको ध्यान से कम 4 से 5 बार यहाँ पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल जी ने कहा है कि संसद में हमारी बातों को सुना नहीं जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है और माइक भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अदानी के आपके रिश्तेदार लगते हैं अवधूत जी, अदानी के ऊपर जब हमारे राहुल जी ने और हमारे अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने जो बातें कही, आप संसद से उस बातों को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई, आप बताइए? कौन सा उसमें गलत बातें थी आपने हटा दिया? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। अगर उनका साथ कौन दे रहा है भाई? अदानी का साथ देने वाला कौन? भाजपा। उनके साथ खड़ा कौन? नरेंद्र मोदी। उनके साथ कौन खड़ा है? देश के जो है गृह मंत्री अमित शाह। तो आप उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगा है, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बढ़ाएंगे, उनके ऊपर सीबीआई नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर ईडी नहीं भेजेंगे। कहां भेजेंगे पता है आपको? मनीष सिसोदिया के यहाँ भेजेंगे, सत्येंद्र जैन के यहाँ भेजेंगे, जो है संजय राउत के यहाँ भेजेंगे, अनिल परब जी के यहाँ भेजेंगे, उसके बाद में नवाब मलिक जी के यहाँ भेजेंगे, देशमुख जी के यहाँ पे भेजेंगे। मगर आपका एक एमएलए 6 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है, मगर उसके यहाँ पे ईडी नहीं जाएगी, सीबीआई नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा पता है? आपके नेता जाएंगे और कहेंगे धीरे से दिल्ली चले आओ, दिल्ली आ जाओगे तो बच जाओगे, और जितना भी दिए हो उसका कमीशन 40%, क्योंकि कर्नाटक में तो फिक्स है आपका रेट, 40% कमीशन आपको जो है वहां से लेना है। तो उन्होंने दिल्ली में 40% नहीं पहुंचाया होगा, इसी वजह से उनके यहाँ पे लोकायुक्त ने जो है छापा मारा कि आपने गलती किया, आपने 40% वहां पहुंचाया नहीं। तो 40% जब आप पहुंचा दोगे तो आपका ये सारा जो है ये जो किए हैं ये सब दूध के जैसे धुल जाएगा। तो ये 40% का कट मनी जो था ना वो नहीं पहुंचा। हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो 40% कट मनी पहुंच गया, इसी वजह से अभी तक सीबीआई ने या ईडी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, ना उनके पास पहुंची तक है। अगर यही जो है मनीष सिसोदिया जी को उठा के जैसे तत्काल रूप से आपने जो है अंदर कर दिया, चाहे वो संजय राउत जी हो, तो सब बता चुका हूं। उसके बाद में आप ये कहते हैं कि राहुल जी विदेशों की धरती पे जाके अपने देश का नाम खराब करते हैं। अरे यही कांग्रेस पार्टी है, यही गांधी परिवार है जो विदेश से लेके अपने देश तक सबसे मजबूती से पूरे देश को बांध के चला के रखा था। ये तो आप लोग आके द्वेष फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, एक पार्टी के अंदर दो पार्टी आप करवा रहे हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम भाजपा कर रही है, और वो ये लेके चल रही है कि इसी तरह से अगर हम द्वेष फैला के आपकी पूरी राजनीति नाम्बियार जी, इनकी पूरी राजनीति जो टिकी हुई है वो द्वेष पे टिकी हुई है, वो जलन पे टिकी हुई है, वो आपसी भाईचारे को बिगाड़ के टिकी हुई है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है, यहाँ पे भाई से भाई को लड़ाया जाता है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया जाता है। आप क्या कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे अवधूत जी, जो 2 पार्टी से आज यहाँ तक पहुंची है, और उसके बाद ये हमको बताएगी कि हम जो है 8 सालों में क्या कहने की 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि तरक्की तो कभी देश ने किया नहीं, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में मिसाइल तक बनाने का काम वो कांग्रेस की सरकार में हुआ, और आप कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं विकास ही नहीं हुआ है। ये तो विकास हमने किया है। कौन सा विकास किया है 8 साल में? ये देश की जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता तो बेचारी कल से परेशान है कि एक तरफ तो जो है वहां खेती सबकी जो है वो सत्यानाश हो गई, चाहे वो अंगूर के फसल हो, चाहे वो गेहूं के फसल हो, सब बर्बाद हो रहे थे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो कलर लेके खेल के, और जो है उप मुख्यमंत्री कलर खेल रहे थे। वो सब दिखा कि कौन कितना खुश है। यहाँ महाराष्ट्र की जनता पस्त और नेता जो है भाजपा के मस्त। ये हालत है आपकी। Avdut, Dr. Saab, before I come to you, if Avdut ji wants to, respond to that, I would allow Avdut Saab to respond.
मुझे मुझे समझता नहीं कि आंख बंद करके हम लोग यदि देखते हैं तो ऐसा ही होगा। 2014 के पहले मोदी जी को सीबीआई के अंदर डालने की बात हुई थी। 2014 में भरत जी 286 एमपी जिता के मोदी जी सत्ता पे है, लोग उनके साथ है। 2019 को मोदी जी वापस नहीं आएंगे, मोदी जी 303 सीट लेके जीत गए। आप जितना चिखल उड़ाओगे कमल उतना ही फूलेगा। बेबुनियादी बातें करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं, अब परिवारवाद की राजनीति ही नहीं करते। जरूरत नहीं है कि राजा का लड़का राजा होना चाहिए, जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा एक चाय परिवारवाद वाला आपकी राजनीति में, भाजपा की सरकार में है। भैया सर, भरत साहब, मैं आपको हाथ भरत सिंह जी, जोड़ता मैं हूं। आपके पास आता हूँ, पहले अवधूत जी को जरा आपको बोलने दो। जितना बोलना है उतना बोलिए। मैं कभी भी कोई मैं भी आपको बात चांस कर रहा हूं, आपके पास आऊंगा भरत कभी सिंह भी जी। नहीं। मैं हाथ ऊपर करता हूँ, बात करने का चांस मिलेगा तो बात करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा धीरज रखिए। हम तो वैयक्तिक शत्रु तो है नहीं, हम तो अपने अपने पार्टी की बात रखने के लिए आए हैं। आपको बहुत मौका मिलेगा। तो कहने की बात ऐसी है कि आप जितना चिखल उठाओगे कमल उतना ही खिलने वाला है। कुछ प्रॉब्लम, आप जिस गांधी नेहरू परिवार की बात करते उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बोला है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आप किसको नेता बनाना किसको नहीं बनाना, पार्टी कैसे लेके जाना, ये आपका प्रॉब्लम है। कांग्रेस कैसे आगे लेके जाना है, खड़गे जी का, सोनिया जी का और राहुल जी की बात है। हमें उससे कुछ लेन देन नहीं है। हम हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ आते। हम आपके ऊपर टीका हमें करना ही नहीं है। हमने किया हुआ विकास दिखाना है। 8 बरस में पर कैपिटा इनकम डबल हो गया। आज हम लोग 5 नंबर की अंतरराष्ट्रीय शक्ति बन गए हैं, द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए। हम लोग 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 3.5 ट्रिलियन। जो 1 ट्रिलियन था भरत जी 2014 में, आज 2022 में हम लोग 3.5 ट्रिलियन हो गए। तो ये कैसे हुआ वो आप ही सोचिए। आज जिस प्रकार से हम लोग 42 करोड़ लोग जिनका बैंक में खाता भी नहीं था, ये किसकी देन है? 60-65 बरस काम करके 42 crore people were kept away from the basic financial system of this particular country। जनधन के योजना से उनको अंदर लाया गया। आज जो गरीब थे, पीड़ित थे, उनको पैसा डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी जा रहा है। आज लोगों को 8 करोड़ 9.5 करोड़ गरीब घर में उजाला के माध्यम से गैस सिलेंडर किया जाता है। आज 84 करोड़ लोगों को 2 टाइम का मिल लास्ट 2 बरस फुकट में दिया जाता रिस्पॉन्स के लिए बोल रहे है। देखो क्या किया क्या नहीं किया। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। गांव गांव में लाइट लगाई गई है। ईस्टर्न क्या बोलते हैं, ईशान्य भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट को कभी आपने देखा ही नहीं था, आपका भाई नहीं समझा था। लेकिन 8 बरस में भारतीय जनता पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, आज नागालैंड हमारे पास आता है, अरुणाचल प्रदेश हमारे पास आता है, मेघालय हमारे पास आता है, सिक्किम हमारे पास आता है, त्रिपुरा हमारे पास आता है। आप सोचिए कि आपके हाथ से क्यों फिसल रहा है। आप सोचिए, आपको अभी भी लग रहा है कि आप बहुत होशियार है, आपकी राजनीति सही है और भारत के 120 करोड़ लोग मूर्ख है, तो ऐसा मत समझिए। ये भारत के लोग एक अच्छे ईमानदार आदमी के पीछे खड़े हैं, इससे कुछ सीख लीजिए और आप भी एक अच्छा नागरिक होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को साथ दीजिए। नाम्बियार जी यस यस डॉक्टर, मैं भरत सिंह जी, मैं 2 मिनट जरा डॉक्टर साहब से भी पूछ लेता हूं, उसके बाद बिकॉज आपका जो आंसर होगा बहुत लंबा होगा और पूरे डिटेल में होगा। बिकॉज वाघ साहब ने उन्होंने पूरे जो बोला पूरे टेक्स्ट बुक उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया कि हमने क्या क्या किए, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा, इतने काम किए, पार्लियामेंट में जो मोदी जी ने जो बहुत बड़ा लिस्ट है। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद वाघ साहब क्लेम दैट मोदी हैज बीन सुपरमैन, जिस डेवलपमेंट जिस रफ्तार से देश को लेके गए? यस डॉक्टर बाबरकर साहब बोलिए ना। बिल्कुल नहीं सर,
बोलिए। आप देखो, अगर स्वास्थ्य का बजट 2% है, शिक्षा का बजट 2% है, वो पिछले तुलना के से कम हो गए हैं। इनको विकास के बारे में ये कौन सा चार्ट बता दे हमें मालूम नहीं है, लेकिन विकास करने के लिए यहाँ टाइम किधर है, किनके पास है? इनको विपक्ष का गला दबाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ईडी सीबीआई का यूज कैसा करे, विरोधियों के मुंह कैसे बंद करे, उसके ऊपर उनका फोकस है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये कोई उसमें तथ्य नहीं है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर गैस पिछले टाइम 50 रुपए से बढ़ा, और जो कमर्शियल गैस था वो 350 रुपए से बढ़ा। महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, और ये जीडीपी ग्रोथ जो बता रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ इतना कम आया है, हमें ताज्जुब हो रहा है कि ये विकास के आंकड़े कहाँ से लाते हैं। लोग दिन ब दिन उनकी हालत बदतर हो जाते जा रही है। हमारी गरीबी रेखा की हम लोग नीचे आ रहे हैं, और ये विकास की कौन से विकास की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। ये जो परिवारवाद और जो दोस्तवाद है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विकास जो हो रहा है वो खाली अडानी का हो रहा है। अडानी विकास करते जा रहा है और हमारी जनता गरीब होते जा रही है, ये वास्तव है। तो या आई विल या भरत सिंह जी आप रिप्लाई कीजिए, बिकॉज आप बहुत समय से बेताब है कि वाघ साहब के जो इतने सारे उन्होंने गिनाए हैं मोदी साहब ने जिस प्रकार से। बोलिए भरत सिंह जी। चाशनी प्लेट में जो है नामिया जी, चाशनी जो है ना, चाशनी सौंप के ये बता रहे हैं कि चाशनी देखिए कितनी अच्छी है। तो बस यही बात है कि चाशनी जो सौंपी जाती है और जनता को दिखाई जाती है कि चाशनी बहुत अच्छी होती है खाने में नामियार जी, तो जनता के मुंह में पानी आता है कि इतनी अच्छी चाशनी जो है वो भाजपा दिखा रही है, लेकिन वो दिखाती है सिर्फ, वो दिखती नहीं है। अब आ जाइए, बताता हूँ कि इनका विकास क्या है। जीडीपी ग्रोथ इस समय जो अभी लेटेस्ट आया था वो 4.4 पे आ गया। कि कितना बड़ा विकास इन्होंने किया है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, आज जो है कम से कम 7 लाख के ऊपर इनकी नौकरी नहीं जा पा रही है। कितने बेरोजगार आज बायोडाटा लेके दर दर भटक रहे हैं। ये तो इनका हो गया रोजगार देने का जो है काम। फिर उसके बाद में जीडीपी आपको बता दिया। अब देश तरक्की पे कर रहा है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताया, जो स्वास्थ्य बजट, जितने बजट इस बार दिखाया गया है, दिया गया है, वो सारे बजट पिछले साल जो वादे किए थे उससे भी कम है। तो भैया कहाँ पे आ गया? और आप कह रहे हैं कि कैपिटल इनकम दो डबल हो गया सबका। कैपिटल इनकम आपने डबल किया, लेकिन थाली का इनकम 4 गुना ज्यादा ले लिया। आपने एक हाथ से दिया है ना, तो 4 हाथ से लिया है। कोई जो है जनता के ऊपर आपने ना दिया नहीं, जनता को, इस देश की जनता को, इस देश की जनता से आपने सिर्फ लेना किया। जनधन खाता की बात की कि हमने इतने जनधन खाता खुलवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम खाता खुलवाया, और राहुल जी ने इसकी तारीफ भी की। अभी उसका आपने बताया नहीं, यूपी में तारीफ किया राहुल जी ने कि मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि सबका खाता तो खुलवा दिया। खाता खुलवा के ये तो दिखा दिया कि आप लोग को 15 लाख रुपया ना वो आने वाले हैं। अब वो कब आएंगे ये नहीं पता। हो सकता है कि इस बार जो चुनाव में 2024 के चुनाव में ये कह दे कि ये भी, मुझे लगता है नामबिहार जी, कि 15 लाख रुपया जो मैंने वादा किया था वो प्लस अभी 15 लाख ब्याज का सब मिला के 30 लाख रुपया आएगा। जो आपने खाता खोला है, अब 30 लाख रुपया आपको आ जाएगा। तो ये आपके जन धन खाते की बात आप बता दूं। और रही बात आपकी जो है गरीबों की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। नॉर्थ के आपने बोले कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जितनी सरकारें, हमारी सरकारें बन गई, हमने सरकार बना लिया। आपकी 2-2 सीट है, वहां पे समर्थन देके आप सरकार बनाते हैं, और आप जो है ना दूसरे की पार्टियों को तोड़ के फिर मिला लेते हैं और कहते हैं कि देखिए पूरी तरह से तो हमारी सरकार है। इनकी सरकार कहाँ थी? ये तो कहाँ थे, कहीं थे ही नहीं, सिर्फ भाजपा थी। मैं आपको एक बता दूं नामबिहार जी, इस देश में नॉर्थ ईस्ट जितनी भी राज्य हैं वो हमेशा केंद्र के साथ ही जाना सही समझते हैं। उनको ये लगता है कि केंद्र के साथ हम जाएंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए ये हमेशा से चला आया है कि नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो अभी भाजपा की सरकार है तो भाजपा के साथ गए, दूसरे की सरकार रही है 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तभी उसमें देख लीजिएगा कुछ राज्य इनके पास थे। तो ये जो अवधूत जी आप बता रहे हैं कि भाजपा ने विकास किया, भाजपा ने देश की जनता को खुश कर दिया। हाँ, देश की जनता को क्या खुश किया आपने पता है? कि 450 का जो गैस सिलेंडर हमारी सरकार दे रही थी, तो उस समय आपने हाय तौबा मचा दिया था। चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हो गए, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो गई, चाहे वो आप सबसे बड़ा आज अभी तो हैं स्मृति ईरानी जी, जो सिलेंडर लेके अपने सर पे उठा के जो एक संसद पर भागती थी कि ये तो 450, बाप रे तो कांग्रेस पार्टी तो देश की जनता को लूट रही है, ये लूटम लाट मचा के रखा है। तो इसको 450 कर देंगे
तो ये बहुत ज्यादा है, हम आएंगे तो इसको 200 कर देंगे। आपके एक मालूम है, आपके एजेंट हुआ करते हैं बाबा रामदेव, वो हमेशा चैनल पे बैठ के कहते थे लोगों से 30 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, 40 रुपए का डीजल, 25 रुपए का डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लोग वहां पे सब खुश होकर बोलते थे हाँ चाहिए, तो मोदी जी को लाइए। अब मोदी जी को लाए तो बाबा से जब कोई पूछता है तो बाबा बोलते हैं क्या मैंने ठेका लेके रखा है क्या, जाओ जाओ मोदी जी से पूछो। तो ऐसे कुछ लोगों को आपने एजेंट के तौर पे जो स्थापित किया था ना, वो सब लोगों ने ये माहौल बनाया। और आज देश की जनता वो तरस रही है कि किस ऐसे झूठे व्यक्ति को हमने देश का बागडोर सौंपा है, जो हमसे 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर ले रहा है, घर के सिलेंडर का। और उसके बाद में जो है इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम तो छोड़िए, नौकरियां खत्म हो गई है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जो महंगाई डायन लगती थी, आज वो महंगाई भौजाई लग रही है भाजपा के लोगों को। तो ये मत बोलिए अवधूत जी कि हमने विकास किया, आपने विकास नहीं किया, देश की जनता का विनाश किया है। अवधूत साहब, राहुल गांधी जैसे भरत सिंह जी कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का क्या हो गया, प्राइस राइज का क्या हो गया, फार्मर्स इनकम अब डबल करने वाले थे उसका क्या हो गया, यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसका क्या हुआ। दीज आर अवधूत बाग साहब करेक्ट फैक्ट्स है जो राहुल गांधी जी ने इस पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा, देश में भी कहा। केजरीवाल साहब ने भी, जैसे डॉक्टर साहब है वो केजरीवाल जी भी नहीं उठाया प्राइस राइज का क्या हो गया, फार्मर्स। सर व्हाट इज नो, भले आपने गिनाए, जैसे वाघ साहब ने गिनाए कि पीएम किसान है, हाउसेस है, गैस फ्री है, टॉयलेट बना दिए, आयुष्मान है, नल से जल। तो अवधूत साहब इसका आंसर प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स डबल, जैसे भरत सिंह जी ने पूछा, डॉक्टर साहब ने पूछा, इसका क्या आंसर है सर? वाघ साहब। सर देखो है, जो सोया है उसको उठाना आसान है, जिसने आंख बंद कर लिया है उसको उठाना कठिन है। आपके सामने कंप्यूटर है, जस्ट गूगल इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एनरोल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम। 2014 में 3 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम में एनरोल्ड थे। इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब साफ है कि इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर around 3 crore people were having a PF account. That means they have got an employment, confirmed employment. बाकी unorganized sector छोड़ दो जाए, उसमें कितनी वृद्धि हुई हम लोग नहीं देखते। Sir Nambiar ji, I challenge you, go through that and now find out it is 27 crore employment provident fund के accounts 27 crore है। 3 करोड़ कहाँ और 27 करोड़ कहाँ, कितना टाइम हो गया? The difference is 24 crore. 24 crore new employments were generated even in organized sector, which and EPOC is approved. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोलना आधी इसी बात नहीं है। 1800 रुपया वो आदमी के पगार से काटना पड़ता है और एम्प्लॉयर को 1800 रुपया, ऐसा 3600 रुपया मिनिमम भरना पड़ता है। दिस इज एज पर द एक्ट। तो 3600 रुपया हर महीने का भरने के बाद वो अकाउंट खुलता है कि नहीं? देखो रिकॉर्ड में, आई चैलेंज यू। हम लोग रुकेंगे 2 मिनट और देखिए, आपके बैक टीम को लगाओ काम पे, आपके बैक टीम को काम को लगाओ और पूछो 2014 में कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का अकाउंट था और 2013 में कितना था इन दिसंबर। तो यदि झूठ बोलना है तो कोई भी झूठ बोल सकता है। इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ये देश में मैंने 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है फिक्स डिपॉजिट पे। आज तुमको 3.5, 4 और 5% से आपको ये नहीं मिलता है, एवरी कोई देता नहीं। फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट, उसमें 2% का अंतर होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इस कांग्रेस के जमाने में जब 16% एफडी मिलता था, इसका मतलब साफ है कम से कम इन्फ्लेशन रेट 14% था। और आज के तारीख में जब 5.5% हमने को एफडी में इंटरेस्ट मिलता है ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब साफ है कि 3.5% से इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन एक समझेगा किसको? जो इकोनॉमिस्ट है उनको समझेगा, जो फाइनेंस के लोग हैं उनको समझेगा, जिनको बेबुनियादी आरोप करने का ही खाली। अरे ये आम आदमी पार्टी वाले, उनके अध्यक्ष ने बोला था कि मैं जिंदगी भर कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा।
तुरंत गए। जिन्होंने अन्ना हजारे को शेंडी लगाई, जो अपने गुरु के नहीं होंगे वो दुनिया के क्या होंगे? अपने गुरु का सुना नहीं, आई विल नेवर गो एंटर इनटू पॉलिटिक्स, और तुरंत पलटी मारी। कितना पलटी मारा? कपिल सिब्बल को गाली देने वाला बोलते हैं आज कपिल सिब्बल। ये अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी यू टर्न वाला ये देश का उद्धार करेगा? क्या बात है? आप किसके ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं? ये मसीहा होने वाला है लोगों का, जिसके आधे से ज्यादा मंत्री आज जेल में हैं। कोई किसी को जेल में नहीं डालता। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कभी भी कोई भी सरकार आने दो, मुझे फाइनेंशियली अंडर डाल के दिखाओ, एक करप्शन का आरोप मेरे ऊपर करके दिखाओ। मेरे ऊपर ईडी आने दो, इंटेपो आने दो, सीबीआई आने दो, सीआईडी आने दो, इनकम टैक्स आने दो, हाई हिम्मत तो करा दो। तुम्हारी सरकार आएगी तो मैं आपको भरत जी पहला चैलेंज देता हूँ, इनकम टैक्स की रेट मेरे ऊपर करा के दिखाओ। नहीं होता ऐसा, इट इज नॉट इजी। आपने गलती की है, आपको भुगतनी पड़ेगी। कर्नाटक भेजो, भेजा है उसको, उसको भेजे, आप चिंता मत करना। अरे कहाँ है अवधूत जी? कहाँ कर्नाटक में बताइए ना, कहाँ पे है? अरे कैसे बात कर रहे 8 करोड़ कैश पाए। आप कुछ भी कहें, मतलब आप जो बैठ के कहे वो सही है। अच्छा, भरत सिंह जी मैं पहले केजरीवाल जी पर, भरत सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ, भरत सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ। पहले डॉक्टर साहब से बोल देते कि जो केजरीवाल जी पे आरोप लगाए हैं, जैसे वाघ साहब ने बोले कि केजरीवाल जी ने अन्ना को धोखा दिया और जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया उसको महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा, जो भी बोले हुए। और डॉक्टर बापेकर साहब, एक तो वाघ साहब ने पूरे डेवलपमेंट आपको सुना के गिनाए कि पीएम किसान घर कितने बनाए, कितने टॉयलेट्स बना दिए, कितने क्या, और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का उदाहरण, उसके बारे में बात करेंगे, बाकी सब छोड़ो। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अकाउंट की बात करें, चले बाकी छोड़ो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाय हिम्मत तो बात करो। डॉक्टर साहब बोलिए। बात मत करो मेरे से, डॉक्टर नहीं बात करने का। डॉक्टर साहब बोलिए। अवधूत सर गुस्सा क्यों हो रहे? अगर सच्चाई है, अगर बातों में सच्चाई है तो गुस्सा करने की क्या बात है? देखिए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन में अरविंद जी केजरीवाल जी ने अहम भूमिका निभाई। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, मुद्दा खत्म होते हुए अगर भ्रष्टाचार करना ही नहीं है तो उसके लिए कोई जनता को विकल्प देना चाहिए। इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने एक साफ सुथरा पार्टी निकाला। उन्होंने तय किया कि वे हम लोग जनता के सामने जाके वोट मांगेंगे, और सबके सहमति से पार्टी बनी। अन्ना हजारे जी को अपना काम खत्म हुआ, उनको पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था। उसमें अन्ना जी को कोई धोखा देने वाली कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी के पक्ष में अगर अन्ना हजारे जी अभी बोलते हैं कि भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, वो सब गलत है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल जो मॉडल है वो दिल्ली ने देख लिया है। वहाँ हम लोग 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। महिलाएं जो है उनको एसी बस में भी ट्रैवल मुफ्त है। वहाँ पानी भी फ्री दे रही है। शिक्षा का स्तर आप देखिए, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने उच्च स्तरीय शिक्षा देने का संकल्प किया और लाखों बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। पूरी दुनिया ने तारीफ की। ऐसे शिक्षा मंत्री को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम कर रहे थे, उनको इन्होंने जेल में डाला। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस मंत्री ने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम किया, जिस मंत्री ने अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक यहाँ चालू किया, उस मंत्रियों को काम नहीं करने देने के लिए उन्होंने जेल में डाला है। अभी हम भाजपा के प्रवक्ता को या पूरे देश को पूछना चाहते हैं कि हमारे मनीष सिसोदिया के गुनाह क्या है। न्यायालय ने उनको विपासना जेल सेल में रखने को कहा था, उनको 1 नंबर जेल में जहां खुखार कैदी है वहां रखने का काम किया है। वहां कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है कि तिहाड़ जेल संवेदनशील है, तिहाड़ जेल में कुछ भी हो सकता है। हमें ऐसा डर है कि कहीं हमारे मनीष सिसोदिया के हत्या की साजिश ना की जाए, क्योंकि वहां खुखार आतंकवादी है। बोलिए डॉक्टर साहब। खुखार आतंकवादी है, जो जिस सेल में रहते हैं, सेल में रखा है, वहां मनीष सिसोदिया के। आपको मालूम है कि कोई भी कैदी अगर पहली बार जेल में जाता है तो उसको ऐसी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। हमारे सिसोदिया जी का गुनाह यही है कि उन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, अच्छी शिक्षा देने का काम किया।
मैंने पहले भी बताया कि 14-14 घंटे तलाशी ली, घर की तलाशी ली, गांव के घर की तलाशी ली, बैंक की तलाशी, लॉकर की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी ये लोगों ने पहली चार्जशीट बनाई, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। दूसरी चार्जशीट बनाई, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम है। और तीसरी बार एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे उन्होंने नाम डाला और जेल में डाल दिया। अभी आपने देखा होगा कि 8 लाख जो घूस पाई बीजेपी के विधायक के बेटे के घर में, उसको तुरंत जेल मिली। वहां ईडी ने, सीबीआई जाती नहीं है और उसको तुरंत जमानत मिलती है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। केवल बेबुनियाद आरोप के पीछे इन्होंने जो जेल में डाला है, उन मनीष सिसोदिया को जेल नहीं देने का काम करे। अभी आपने देखा कि अमानवीयता की बीजेपी वालों की हद देखो। लालू प्रसाद यादव जो 7-8 महीने से अब इलाज ले रहे हैं, उनको किडनी की बीमारी है, उनसे 2.5 घंटा ईडी वाले पूछताछ करने जा रहे हैं। जो बिस्तर पे आदमी है और जो 8 लाख रुपया घूस लेता है, पकड़े पाया जाता है, बंडल हमने चैनल पे देखे हैं, उसको तुरंत उसको जमानत देती है, ईडी वाले उसके पास पहुंचते नहीं। तो ये क्या है? ये साजिश समझी, एकदम साजिश है। विपक्ष का गला घोटने का काम कर रहे, विकास के नाम पे जीरो, कोई आंकड़े इधर के उधर बताने का काम करते हैं। और हुक और कुक, इनकी सत्ता सब जगह आनी चाहिए, इसका ये प्लानिंग कर रहे। और विरोधियों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचने का काम, हमेशा दिन रात चुनाव वही इनके दिमाग में होता है। विकास के बारे में, जनता के बारे में कुछ भी सोचने का काम बीजेपी वाले करते नहीं है, ये हमारा कहना है। अवधूत वाघ साहब, जिस प्रकार से आज देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, मैं भरत सिंह जी आपके पास आता हूं। आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट फडणवीस साहब ने कहा कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैंने अपने ओपोनेंट्स को मैंने माफ कर दिया, आई हैव फॉरगिवन देम, मैंने उनको माफ कर दिया, आई हैव फॉरगिवन देम। कोई द्वेष नहीं है, कोई ये एरोगेंस नहीं है, कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं होगा। क्या बीजेपी is trying to mend fences with उद्धव ठाकरे जी? क्या अब बीजेपी को लगता है कि एमवी अगर एक साथ, if they come together, the vote share is more, जैसे पहले भी पवार साहब ने कहा, शरद पवार साहब ने कहा कि the winds of change have come, तो आज इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो सर? देवेंद्र फडणवीस जी is trying to lure उद्धव ठाकरे जी, कैसे वाघ साहब उसको देखते हैं? मुझे लगता है कि देवेंद्र जी का जो आज का स्टेटमेंट है, उसको किसी भी व्यक्ति से जोड़ना नहीं चाहिए। एक इंटरव्यू में देवेंद्र जी ने कहा था कि मैंने बदला लिया, आई हैव टेकन अ रिवेंज, एंड ही हैज यूज्ड द वर्ड बदला, दैट मीन्स रिवेंज। Then in second interview, he said that after discussing with many people from media and other section of society, people said that you should have avoided that particular word. आपने वो शब्द अवॉइड करना चाहिए था। और देवेंद्र जी को भी लगा बाद में कि उन्होंने ही बदला ये शब्द है, रिवेंज ये शब्द है, यूज नहीं करना चाहिए था पॉलिटिक्स में। तो इसके लिए उन्होंने लगता है कि शायद वो बदला शब्द यूज नहीं करना चाहिए, उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे मन में कोई बदले की भावना नहीं है, हमारे मन में किसी पॉलिटिकल वेंडाटो है, किसी के पॉलिटिकल रिवेंज लेने का है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। और वो होते समय थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन होते समय हम लोग पॉलिटिकली फ्रिक्शन रखेंगे, लेकिन वैयक्तिक स्वरूप पे नहीं आएंगे। आजकल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सुबह 9 बजे आके यदि कोई तेल लगाने गया, शेन खात होते का, बोले तो इलेक्शन कमीशन शेन खात होते का, हरामखोर, चिट्ठी चोर, ऐसे वर्ड कोई यूज करता है तो पॉलिटिकल स्तर बहुत नीचे हो जाता है। महाराष्ट्र में ऐसी संस्कृति और परंपरा नहीं है। इसकी एक स्टेप हमसे शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए आदरणीय देवेंद्र जी ने कहा है कि भाई मेरे मन में ऐसा कोई चीज नहीं है, हम लोग विरोध करेंगे, पॉलिटिकली वी कैन हैव difference of opinion, but it should not reflect in our personal behavior.
हमने एक अच्छा स्तर रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक महाराष्ट्र संतों की भूमि है, समाज सुधारकों की भूमि है। देर इज अ लाइन ऑफ सेंट्स born in Maharashtra. There is a line of social reformers in Maharashtra. तो इन सभी लोगों ने जो मार्ग अपनाया, उसी तरह से पॉलिटिक्स में चीजें होती रहेगी, पॉलिटिकल बैटल होते रहेगा। अब्दुल साहब, ये वाघ साहब ये भी बोला, अजित पवार ने एक बहुत स्टेटमेंट कर दिया, वेयर आर द वुमेन्स मिनिस्टर। बोले आज वुमेन्स डे है, वेयर आर द वुमेन्स मिनिस्टर्स। तो कैसे इसको आप रिस्पॉन्ड करोगे वाघ साहब? आई मीन द होल वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हेन आर द, बिकॉज़ पूरे कैबिनेट में देयर इज नो वुमन मिनिस्टर सर। दैट्स व्हाट अजित पवार सेज। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। 50% पॉपुलेशन है महिलाओं की, और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन एमएलए इलेक्शंस एंड एमपी इलेक्शन। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कोई भी पार्टी होने दो, 2%, 4%, 5% होता है। और आज का जो सिचुएशन है कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ने दोनों मिलकर जो सरकार बनाई है, वो सरकार और जो मंत्री है वो बहुत कम मात्रा में है, अभी भी एक्सपेंशन होना बाकी है। लेकिन आज के दिन में नहीं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि नेक्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे में एक बहुत सारा प्रतिनिधित्व ये महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री में होगा। भरत सिंह जी, आपको कुछ पहले भी रिस्पॉन्ड करना था, जिस प्रकार से डेवलपमेंट है, और जो वाघ साहब ने एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स दिए थे, बोले कि उसको वेरीफाई हमारे बैक ऑफिस भी वेरीफाई कर रहे हैं। वाघ साहब ने एकदम हमारे आपके एंथुजियाज्म में जिस प्रकार से कहा कि यस देर आर, कैसे करते हो भरत सिंह जी? जी देखिए, ऐसा है ना कि पहले मैं गुरु पे आ जाता हूँ। वाघ साहब ने कहा कि जो गुरु की इज्जत नहीं करता है वो क्या सिखाएगा। एकदम सही कहा। केजरीवाल जी और अन्ना जी के बारे में बोले थे। नहीं तो ठीक है, मैं दुरुस्त कर दूं जरा अवधूत जी को। वाघ साहब तो बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर है, हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी पता है। देश ने देखा है, मैंने भी देखा, और शायद अवधूत जी आपने अपने चश्मे से देखा होगा, मेरे चश्मे से तो दिखा, पता नहीं आपके चश्मे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इस देश में देश के प्रधानमंत्री के गुरु अगर पूरा देश जानता है अगर कोई था तो है, तो वो आडवाणी जी है। इस देश ने देखा है कि आडवाणी जी का हाइट भी देखा है, रुतबा भी देखा है, और भाजपा को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान, और मुझे लगता है मोदी जी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान जो था वो आडवाणी जी का था। इस देश ने देखा कि उसी आडवाणी जी का किस तरह से बेइज्जती देश के प्रधानमंत्री अपने गुरु का करते हैं, जब वो बेचारे इस तरह से हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रह के, इस उम्र में हाथ कांप रहा है, हिल रहा है, और देश के प्रधानमंत्री का जो मतलब एकदम उनको देखना नहीं और उनको बिना देखे आगे चले जाना, तो ये दिखाता है एरोगेंस किसके अंदर है और कौन अपने गुरु का अपमान कितना करता है। तो ये दिखाता है अवधूत जी कि गुरु का अपमान कौन किया। अब मार्गदर्शन पैनल, मार्गदर्शक मंडल में जरूर स्थान दिया है भरत सिंह जी ने। हाँ, अब यही तो बचा था उनको ये पता था कि भाई देश के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा कौन आ सकता है और कौन बनेगा, तो ऐसे लोगों को उठा के मार्गदर्शन मंडल में डाल दो। वो बेचारे उस व्यक्ति को मैंने देखा है, मैं खुद संसद में 2-4 बार उनके खुद स्पीच सुने हैं, और बहुत देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आडवाणी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का जो एक अपमान मैंने देखा इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा, एक शिष्य के द्वारा एक गुरु का अपमान, वो भी देश ने देखा। अब आइए महिला की बात करते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री महिला और भाजपा महिला की इज्जत क्या करेगा, जो संसद में महिलाओं का अपमान करते हैं खड़े होके, वो महिलाओं का अपमान, और महिलाओं को कहाँ मंत्री बनाएंगे, कहाँ आप जो है नाम्बियार जी पड़े इस चक्कर में कि वो महिलाओं को जो है मान सम्मान देंगे। बेटियों का जो है यहाँ पे मान सम्मान नहीं होता है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता है। अब आ जाइए कि इन्होंने कहा कि नौकरी का डाटा निकाल लीजिए, एम्प्लॉयमेंट का निकाल लीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि सरकार आपकी, सब बाबू आपके, कलम चलाने वाले आपके, सारे लोग तो आपके हैं। आप ही को तो बनाना है डाटा कि कितना हमने दिया और कितना हमने लिया है। देश की जनता ये देख रही है, देश की जनता ये समझ रही है कि आज महंगाई की मार किस तरह से बढ़ी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो हर स्तर पे
आज जो है जनता त्रस्त है, लेकिन आप लोग मस्त है। मस्त क्यों है? क्योंकि आपके पास अदानी और अंबानी है। अदानी का तो पोल खोल दिया है, पोल खुल गया है, और आज जो क्राइसिस आया हुआ है उसमें अदानी का और नरेंद्र मोदी जी का साथ में दिखे होंगे कि प्राइवेट जेट में किस तरह से मस्त एकदम आराम करते हुए फरमा के जा रहे हैं। तो ये देश की जनता ने देखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है हमने रोजगार दिया है, तो रोजगार दिख रहा है कि इस देश ने कितना आपने रोजगार दिया है। गुरु की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, एम्प्लॉयमेंट की आपने बात किया। तो आप है ना कागज पे एक कहावत है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। मतलब आप कुछ कहेंगे वही सही है, और इसी वजह से आप तिलमिला गए थे। तिलमिला के आप इस तरह से जो बता रहे थे ना, बोल रहे थे ना कि जोर से बोलो। मैंने शुरुआत में कहा था नाम्बियार जी कि जोर से बोलो, तेज बोलो, कि ताकि विपक्ष के लोग ये डर जाए कि थर-थर कांपने लगे कि नहीं नहीं नहीं, भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम कांपने वालों में से नहीं है, हम कपाने वालों में से हैं। देश की जनता की आवाज, देश की जनता की बात देश की जनता के सामने रखेंगे, और एक मजबूत विपक्ष होने का जो हमारा दायित्व है, हम आपके साथ लड़ेंगे। व्यक्तिगत हमारी आपकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, क्योंकि मनभेद होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। इस देश में अब जो है वो उल्टा हो गया है। मतभेद तो नहीं है, मतभेद तो अलग है, मनभेद हो गया है। ये मनभेद करने का काम किसी ने किया है नाम्बियार जी। तो इस देश की नई जो अभी सरकार चला रही है, जो अपने आप को कहती है कि सबसे बड़ी मैं पार्टी हूं, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद ये कहती है कि नहीं, सबसे इस देश की जनता को लाड़ प्यार हमने दिया है। आपने कुछ नहीं दिया है। अगर किसी ने लाड़ प्यार दिया तो राहुल जी ने दिया, और वो दिखा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। रोज दिखता था कि 6 बजे नाम्बियार जी, 7 बजे 6 बजे जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश की जनता, बारिश नहीं देखी, ठंडी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, हर मौसम में जो है देश की जनता राहुल जी के साथ आके मिलती थी, जो प्यार से मिलते थे। तो ये देश की जनता को इस चीज की अवधूत जी जरूरी है, जरूरी इस चीज के है कि प्यार बांटना है। देश में ये जो है नफरत की राजनीति अगर आप लोग छोड़ देंगे तो शायद लगता है कि हमारा देश बहुत खूबसूरत बन सकता है। और रही बात की जो है आज देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बयान दिया, जो आप बता रहे थे नाम्बियार जी। देखिए वो बयान कब आया? कस्बा सीट हारने के बाद। अब उनको समझ में आ गया है कि हम जो है महाविकास आघाड़ी से आगे नहीं जा सकते हैं, इनसे जो है पंगा लेना हमारे लिए। ऐसे ही एक कस्बा नहीं हारे हैं, एक कस्बा आज गई है, और अगर ये चुनाव हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारा 200 नहीं 250 सीटें महाविकास आघाड़ी की आएगी। इसी महाराष्ट्र में देख लीजिएगा। यही वजह है कि ये चुनाव से भाग रहे हैं। महानगर पालिका और नगर परिषद जो चुनाव है आज ये करवा नहीं रहे हैं। सिर्फ इनको डर है कि कहीं हम इस तरह से हार तो नहीं जाएंगे। हार आपकी सुनिश्चित है महाराष्ट्र में। अवधूत जी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमारी महाविकास आघाड़ी की गठबंधन मजबूत है, और देखिएगा हम आपको धोबिया पछाड़ जरूर देंगे। Wag Sahab, before you begin, I just asked Dr. Sanjay Papirkar. Papirkar साहब, do you believe that महागठबंधन जो MVA साथ में आए, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस लुभाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को, जैसे उद्धव ठाकरे जी का रिस्पॉन्स है, कूल रिस्पॉन्स है, क्या MVA और थ्रेट है बीजेपी आज के तारीख में सोच सकते they're going to romp home in 2024, बट MVA जिस प्रकार से लगातार, यानी अगले 6 रैलीज उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं अप्रैल तक, जिस प्रकार से एकजुट बनकर चल रहे हैं, इज अ थ्रेट टू बीजेपी। और फिर वेयर डज आम आदमी पार्टी फिगर इन दिस? डॉक्टर साहब, महाविकास आघाड़ी का जो एजेंडा है वो उनका चालू है, लेकिन हम जो चाहते हैं कि लोगों के विकास के लिए काम करना है, आपसी उलझन में ना फंसे हुए लोगों को विकास के काम में लोगों का विकास हो। जैसे कि हमने दिल्ली में दिल्ली मॉडल, हमारा अरविंद केजरीवाल जी मॉडल दिल्ली में अप्लाई किया है, पंजाब में भी किया है, जैसे गुजरात में भी बताया है, वैसा मॉडल हम महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे। और लोगों के घर घर में जाके हम लोग वोट मांगेंगे कि देखो आपने सभी को मौका दिया है, अभी इस टाइम आम आदमी पार्टी को मौका दो और विकास का काम करने की हमें एक अपॉर्चुनिटी दो। ये हम डिमांड करेंगे। और हमें लगता है कि एक नए पर्याय के रूप में मुंबई की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देगी। वाग साहब, जिस प्रकार से आप देखोगे, वाग साहब, MVA has got together and they are a cemented force as on today. MVA को भले फडणवीस साहब ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार चल रहा था,
कोश्यारी साहब जाते वक्त भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी एक सेंट है, कहां फंस गए पवार साहब और उनके बीच में। आज फिर फडणवीस साहब ने कहा कि ये तो, और आज ही एमवीए के कांग्रेस के लीडर नाना पटोले जी ने कहा कि हम करीबन 6 रैलियां एक साथ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइट यूनाइटेड। एंड हमने देखा बाय इलेक्शंस में जिस प्रकार से रिजल्ट्स आए। वाक साहब कैसे देखते हो? वाक साहब एक्चुअली एक एडुकेटिव प्रोसेस है, आपसे बात करना, भरत सिंह जी कुछ भी हो, वाक साहब एक विकी पीडिया है कि आप कुछ भी बोलो लगातार बोले। वाक साहब कैसे देखते हो एमवीए अलायंस, बीजेपी इन ट्रबल, हाउ यू सी सर? देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब तक किसी का उपयोग है उसको साथ में रखा दिया जाता है, और उपयोग खत्म, रात गई बात गई। आज हुआ है क्या कि 2019 की रिजल्ट लगने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर इतने उनके पास संख्या नहीं थी कि वो जो अपना they can form a government. Vis-a-vis since 1999 till 2014, both Congress and NCP had enough number to form government. That is why they formed government for 15 continuous years without taking help of Shiv Sena. In 2014, Nambiarji, when Shiv Sena fought separately, independently, BJP fought independently, Congress fought independently, NCP fought independently. But when Sharad Pawar came to know that both Shiv Sena and BJP can come together and form a government, he declared uncalled for support to BJP even before declaration of entire result of the same counting day. You must be remembering that. Yes, yes. तो इस प्रकार से शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए और आफ्टरवर्ड्स उनका बार्गेनिंग कैपेसिटी कम करने के लिए शरद पवार ने काम किया था 2014 में। 2019 में इक्वेशन चेंज हो गई। शिवसेना was number 1 party after BJP with 56 seats versus NCP 54, and if I am not mistaken, Congress 42. So they had no other alternative but to come together. If they want to come into the power, they all had to come together to make a government, and that is how शिवसेना की उनको आवश्यकता थी। शिवसेना की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेम नहीं है, एनसीपी की आइडियोलॉजी सेम नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी सेम नेचुरल फ्रेंड्स हो सकते हैं, शिवसेना नहीं। लेकिन ये क्या था, इट इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, एंड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तब तक था जब तक उनके पास 56 विधायक थे। आज शिवसेना के पास 10 विधायक होने के बाद उनका नेगोशिएशन पावर खत्म हो गया है और उनकी रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई है। इसलिए मैं नहीं सोच सकता, एंड आई कैनॉट थिंक दैट 2024 में भरत भाई, आप मेरे दोस्त हैं, हम लोग 2024 के बाद मिलेंगे। 2024 में आपको एनसीपी के साथ जाना होगा, आप और एनसीपी साथ में चुनाव लड़ेगी। शिवसेना को आप ले ही नहीं सकते, कितने सीट दोगे? 100 मांगेंगे, 150 मांगेंगे, तो आप 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के उनको दे देंगे जिनकी औकात खाली 10 और 15 एमएलए की है। उनके 40 एमएलए छूट गए। और संजय राउत कुछ भी बात करते हो, बोलते हैं कि आने वाले कल के चीफ प्राइम मिनिस्टर का चेहरा उद्धव ठाकरे, वो तो बोलेगा अमेरिका के प्रेसिडेंट का चेहरा भी उद्धव ठाकरे। तो संजय राउत के पीछे मत जाइए, आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपने पूरे इंडिया के ऊपर 60 बरस से राज किया है। ये लोग क्या, you should in fact you should come forward and lead the opposition। जैसे कि खड़गे साहब ने बोला था कि only Congress will lead opposition in 2024 के इलेक्शन में। अभी अरविंद केजरीवाल बोलता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर्स फेस, ममता बनर्जी बोलती है आई एम द प्राइम मिनिस्टर्स फेस, शरद पवार बोलता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर्स फेस। But Bharatji, believe me, I think the Prime Minister face is only and only Rahul Gandhi. राहुल गांधी जी के सिवा नरेंद्र मोदी जी के सामने और कोई प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि 2024 में आप सभी मिलकर आदरणीय सम्माननीय महायोगी योगनायक, तरुणों के उद्धारक आदरणीय श्री राहुल जी गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और ये बाकी किसी को पूछिए मत, वो आपके पीछे होंगे, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट पार्टी। ऑल इंडिया जिसका प्रेजेंस है, ऐसी बड़ी पार्टी है, 150 बरस का इतिहास है,
गांधी जी, नेहरू जी सब आपके पीछे है, तो आप डरते मत, डरिए मत, लड़िए 10 और सेकंड लड़ाइए आप। आपको राहुल जी सलाह के दे रहे हैं पीछे। भरत सिंह जी आपको सलाह दे रहे हैं, वाघ साहब बोले कि देखो मत करिए। और टेक्निकली फैक्चुअली आप देखोगे 37 to 40% बीजेपी का वोट शेयर है और सेकंड बिगेस्ट वोट शेयर है कांग्रेस का 20% के आसपास वोट शेयर है, और तीसरा आप देखोगे 4% है, डबल फिगर में कोई नहीं है। तो ये सलाह क्या लेंगे क्या कांग्रेस? देखिए, धन्यवाद अवधूत जी, आपने जो है राहुल जी को मान लिया देश का प्रधानमंत्री, इसलिए मैं आपका तहे दिल से नहीं आभार प्रधानमंत्री व्यक्त नहीं, करता हूं। प्रधानमंत्री के पद के दावेदार अरे कैसे? भाई, आपने उतना देखिए, आपका कहना ही बहुत बड़ी बात है। भाजपा का कोई प्रवक्ता ये कहता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री के फेस हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप मतलब मान लिए एक तरह से कि राहुल जी प्रधानमंत्री के फेस है। धन्यवाद। दूसरी चीज देखिए नाम्बियार जी, इसीलिए कहता हूं ना कि भाजपा के पास कितनी चालाकी है। चैनल पे बैठ के सारा चीज इन्होंने जितना आपस में झगड़ा लगवाना था वो मतलब कह दिया कि जो है वो 15 सीट बिकॉज वाले केजरीवाल के रिप्रेजेंटेटिव पड़े इधर। नहीं डॉक्टर साहब 15 नहीं ये कह रहा हूं कि 15 सीट की जो है शिवसेना बची है, आप उनको कितना सीट दोगे? ये 2 सीट के बचे हैं, आप कितना सीट दोगे? देखिए, इस तरह से कहने से हमारी महाविकास आघाड़ी टूटने वाली नहीं है। हाँ, ये हमारे जो है जो हमारे प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा। लड़ेंगे तो हम जरूर महाविकास आघाड़ी के साथ, वो चाहे उद्धव जी हो, उसमें साथ में उद्धव जी भी होंगे, एनसीपी भी होंगी, और उसके बाद में हमारी जो है कांग्रेस पार्टी हम तो है। हो सकता है कि और नामयादी इसके अंदर 2-3 पार्टियां आ सकती हैं, बातचीत हो रहा है। तो सब मिला जुला के ये कह रहा हूं कि आपका सुझाव बहुत बढ़िया है, आपने इतना हमारे लिए प्यार दिखाया, वही बहुत बड़ी बात है। ये सलाह कम से कम दिल्ली तक पहुंचा दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी अब करो कुर्सी खाली, आ रहे हैं राहुल गांधी। बट वाघ साहब ने, भरत सिंह जी, वाघ साहब ने झगड़ा भी लगा दिया, बोल रहे कि संजय राउत जी बोल रहे कि उद्धव जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो नहीं, देखिए मैंने साथ साथ झगड़ा भी लगा दिया आपने। अवधूत, देखिए अवधूत जी, मैंने क्या कहा आपको, मैंने अवधूत जी ने इसमें बहुत कुछ कह दिया, झगड़ा लगाने का भी काम किया, लेकिन समझदार, देखिए समझदार कोई झगड़ा नहीं करता है। ये तो भाजपा का यही तो खेल है कि जहां पे नहीं टूटता है तो वहां पे प्यार से बोलो, साम दंड भेदभाव सब। तो अवधूत जी ने चैनल पे बैठ के साम दंड भेदभाव सब कोशिश किया कि भाई कैसी भी हाल में महाविकास आघाड़ी टूट जाए। आज देखा होगा कि आपने देवेंद्र फडणवीस ने जी ने किस तरह से कहा कि नहीं नहीं भाई उद्धव जी भी अच्छे हैं, मैंने माफ कर दिया। अरे आप तो सबके घर पे ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं, माफ कहाँ किए थे? अब आप कसबा सीट हार गए हैं, जो आपका गढ़ हुआ करता था 30 साल से, वो आपके पास थी और वहां पे आरएसएस का गढ़ है। उसके बाद अगर वो सीट आप हारते हैं तो ये आपके लिए झटका है। आप जो है 5-5 सीट जो है स्थानक के हारते हैं तो ये आपके लिए झटका है। तो यहाँ पे समझ गए कि महाविकास आघाड़ी को किसी तरह से टूटना चाहिए, तो अवधूत वाघ जैसे प्रवक्ताओं को भेज के सब जो है कंफ्यूजन पैदा करना चाहिए। ऐसा जो है एक भाजपा का षड्यंत्र रहता है और ये उसमें कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी कामयाब नहीं होते। तो इस बार महाराष्ट्र में तो कम से कम नाम्बियार जी कामयाब नहीं होंगे। हाँ, एक बात कह देता हूं कि 2024 में कांग्रेस के बैनर के नीचे ही सारी पार्टियां, छत्र पार्टियां, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब आएंगी और मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उतना ही फ्लेक्सिबल रहेगी जितना फ्लेक्सिबल छत्र पार्टियां रहेंगी। जहां पे जिसकी ताकत होगी ज्यादा, वहां पे वो अपने हिसाब से लड़ेगा, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। जहां हमारी ताकत मजबूत है, हम वहां पे अपने हिसाब से लड़ेंगे, वो सब हमको मजबूती से साथ देंगे। तो हम सभी जो है अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, अवधूत जी आपकी सलाह को मानते हुए हम सब साथ में मिलके लड़ेंगे और 2024 में फिर से देखिएगा इस देश का माहौल बदलेगा और प्रधानमंत्री भी बदलेगा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो बैठ के उस समय तय होगा। डॉक्टर बापेकर साहब, क्या आप वाघ साहब का सजेशन लेंगे? वाघ साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से चैनल पे जाना नाम्बियार साहब, ओके वाघ साहब ठीक है ओके वाघ साहब, ओके वाघ साहब जा रहे हैं चैनल पे, ओके थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वाघ साहब, थैंक यू सो मच। यू वांट टू गो? अच्छा बापेकर साहब बोलिए। बापेकर साहब क्या आप वाघ साहब के इस चीज को ले रहे हैं, सजेशंस को ले रहे हैं? डॉक्टर बापेकर साहब, कैन यू हियर मी?
हाँ सर, नामियर साहब, हाँ, मुझे बोलिए ताज्जुब सर। हो गया, मुझे ताज्जुब हो I गया। can't see Babekar sir. The technical team, please. I can't see Babekar. हाँ, yes. बोलिए, बोलिए, बोलिए. नामियर साहब, हमें ताज्जुब हो गया कि बीजेपी का रवैया कैसे बदला। एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की थी। बिल्कुल. अब सीधे सीधे राहुल जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान के ये आपसी झगड़ा लगाने का काम बीजेपी कर रही है। और दूसरी बात, अभी वो चले गए, लेकिन मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जब एक बात सच बोल के चले गए कि पॉलिटिक्स में जब तक किसी का इस्तेमाल होता है तब तक साथ में रखा जाता है। तो ये शिंदे जी को एक इशारा था क्या, क्या ये मुझे पूछना था, लेकिन वो चले गए। आप जरूर पूछिए उनको। बिल्कुल, बिल्कुल. और केजरीवाल जी का क्या रवैया रहेगा? देखिए, केजरीवाल साहब ने हमें जो गाइडलाइन दी है कि हम अपने बलबूते पे लड़ने वाले हैं, हमारा एजेंडा अलग है। हम दोस्तवाद और परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते। हम विकास के लिए लड़ना चाहते हैं और विकास का मॉडल लेके जनता के सामने जाएंगे और चुनाव लड़ने की बात करेंगे और जितना हो सके उतना लोगों में जाके हमारा एजेंडा बताने का काम करेंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. यू हैव बीन वेरी एनलाइटनिंग और हर सवाल का आपने जबरदस्त जवाब दे दिया. इट वाज फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू बाबा. थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah. We come to the end of the program. We thank all our guests who have been fantastic. They have been great. Avdut Waq Saab, Sanjay Papekar Saab, Bharat Singh Saab. They have been fantastic, and we find an enlightening debate about the future course of politics in Maharashtra and India. As we say, the preamble to the Constitution says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Whichever party comes to power, we believe that the four pillars of democracy are protected. It prospers and survives. Because if the Constitution survives, we all survive." That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now today. We'll come again with more such news tomorrow at the same time.